and gentlemen, welcome back to Double Trouble. This is me, Jemima Rodrigues, and with me I have Smriti Mandana. And I just want to tell you guys that the kind of response that we got, I mean, it was really overwhelming, guys. And thank you for all love and support, and continue watching this. Smriti, what do you say? यस जमी बहुत अच्छा लगा सबके मैसेजेस पढ़ के एंड आपका प्यार ही है जो हम सबको बनाता है एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। वाह स्मृति, किसी ने आपको बोला कि आप एक दिन नेताजी भी बनोगे? यार बहुत लोगों ने बोला। Anyway, coming back to the show. So Smriti, in the first episode, we spoke about our first, how we met for the first time and Yes. everything. But I think today we can talk about the first time we actually started like bonding with each other. Yes, Jimmy. I think South Africa में it all started, when we were roommates for the first time, and उसके बाद we started bonding a bit. We started seeing each other कि कैसे अपन prepare करते हैं matches के लिए. But there was a certain level of discomfort of कि कैसे share करे cricketing stuff, or because it's a new person altogether. But I think you remember that one match where जहाँ पे तुझे I think the tour was going pretty well and you batted amazingly. But एक match था जहाँ पे you didn't bat, the way. I think you're supposed to bat, and then you got a bit of scolding from the coach in the team meeting, or too बहुत down थी, and then that we were coming off the team meeting, and I just said कि let's go Jamie, let's go for a walk, and then first time you said नहीं मैं नहीं आ रही. I was like okay fine. I started crying. And Smriti saw me, I was very low and all that. So she like, okay, ठीक है यार, why not we take Jamie for a walk? And like a good senior, she came to me, Jamie, come we go for a walk. I was like, no. And Smriti, I don't know what she might have thought. Actually, there was some other reason. Smriti went ahead, I ran, came, Smriti, come we go for a walk. So then Smriti took me for a walk and she explained to me, see, you're just a 17-year-old. First thing you should realize that to play for India is actually a big achievement in itself. So you should be proud of that. And the thing is that all these things will come. When you do well, people are going to praise you. They're going to say, well done, this and that. When you don't do well, you should be ready to also take those criticisms. And this is what international cricket is all about. So it's a learning experience. Don't worry, yeah? Smile and all that. ये भी थोड़ा सा कम चला था ये टॉक. इसके तब जेमी वाज ओनली 50% ओके, बट व्हेन आई सेड कि अरे जेमी पता है मैं 17 इयर्स की थी एंड आई ड्रॉप द क्रूशियल कैच इन वर्ल्ड कप एंड देन आई वाज ऑल ब्रोकन एंड दिस इज द सेम फीलिंग आई हैड. तब जब वो लाइक ये तेरे साथ भी हुआ था ये. Yeah, actually straight away. Correct. Yeah, I could actually relate because I like if Smriti Mandana, the great fielder, can drop a catch, so Jemima Rodrigues great fielder can also fail in a match, no problem. But actually, if you go to see, then in the next match I did really well. So thank you. All thanks to me, guys. Guruji, thank you. Thank you so much. It's okay, yeah. We all need a mentor like Smriti, guys. Just kidding. Right now, I also need a mentor. Okay, guys, I told you a lie before. If we both start talking, we'll go on for ages. So it's time for us to call our guest on the show. So ladies and gentlemen, put your hands together for India's two best leg spinners, Yuzi Chahal and Poonam Yadav. Woo! पहले मैं ही शुरू करना चाहूंगी पता है ना मैं ओपन करती हूँ तो इसके लिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट. तो आज का अभी का सबसे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप दोनों को पूछूंगी. लॉकडाउन में कर क्या रहे हो? युजी भैया आपसे पहले शुरू करेंगे. कुछ नहीं, एक तो काफी टाइम के बाद फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. आई थिंक आफ्टर 14-15 इयर्स इतने टाइम के बाद मैं घर में टिक रहा हूँ. और स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा अजीब सा था पहले लॉकडाउन में, क्योंकि मैं ये हो क्या रहा है, मतलब घर के बाहर नहीं जा सकते और कुछ नहीं. फिर धीरे धीरे फिर एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मूवीज वगैरह चालू किया, फिर ऑनलाइन में गेम्स खेलता रहता हूँ. और दीदी भी आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी यहाँ स्टक हो गया. मैं तो मोदी जी को बोल रहा था, मोदी जी एक दिन के लिए खोल दो प्लीज, वापस जाने. मैं भी बच जाऊंगा. और मोदी जी ने आपकी बात नहीं सुनी, कैसे हो सकता है? Not fair. मैं एक दिन के लिए खोल दो, सबसे पहला टिकट मैं ले लूंगा, चाहे ब्लैक में. मुझे क्योंकि अच्छे से याद है, क्योंकि एनसीआर में अपन जब कैंप कर रहे थे तभी मैं हमेशा आपको पूछती थी, आप बार बार मतलब छोटी मोटी इंजरी के लिए भी इधर आ जाते हो. तो वो हमेशा बोलते थे कि यार मुझे घर जाना पसंद नहीं. सो आई कैन जस्ट इमेजिन. नहीं, कभी आदत नहीं. अभी तक घर वाले ने मतलब घर के बाहर नहीं भेजा आपको? कभी आदत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को कम से कम 20 साल हो गए घर से बाहर रहते हुए. तो पर अब कुछ नहीं, अब रहता हूँ थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया है मेरा. मॉर्निंग 9 o'clock 10 o'clock सोता हूँ अपना ब्रेकफास्ट मिला के. पर अभी ये कि पिछले 5-6 दिन से मैंने एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको खत्म करके फिर मैं आराम से 6-7 बजे उठता हूँ. और फिर अगर मुझे अपना कुछ लाइव वगैरह जाना होता तो मैं जाता हूँ, नहीं तो कुछ एस्पना जूम तो है. और पीवा आपका क्या चल रहा है? हाँ माडू यार, बहुत प्रॉब्लम हुआ है स्टार्टिंग में.
दिन हुआ, रेस्ट किया मस्त। मैंने कहा यार अभी क्या करूँ ना, फिर दोबारा से शेड्यूल बनाया, नहीं यार अब नहीं हो पा रहा। यूजी भैया अगर पीवाई को बोलते हैं ना कि आज रेस्ट है, कोच ने भी बोला ना, फिर भी पीवाई आके 6 ओवर्स तो डाल के जाएगी, 6 ओवर्स मिनिमम है, उसको बस ऐसे निकालना पड़ता है, बस भाई बॉलिंग नहीं करना। पीवाई तो आपको तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। हम तो ऑप्शनल प्रैक्टिस ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों को 14-15 साल बाद मिला है, लेकिन तो भी लड़कियों का स्टिल थोड़ा कम है। 5-6 साल बाद थोड़ा टाइम मिला है स्पेंड करने का फैमिली के साथ। लूडो खेल रही हूँ, चेस खेल रही हूँ। I am a chess champion, guys. Not you. No, I'm just kidding. You Yuji get a भैया, face, man. Yuji भैया, I mean, actually आपका शक्ल देख के ऐसा लगता नहीं कि आप चेस चैंपियन हो। मतलब कैसे चेस क्रिकेट, कैसे वो रिलेशन? पहले ये बताओ, चेस शक्ल देख के लगता क्या है, मुझे वो चीज जाननी है। वो तो मैं आपको प्राइवेटली कॉल करके बोलूंगी। ये ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो आई कांट टेक दैट चांस। डैड पहले अपने कॉलेज टाइम पे खेलते थे, तो एक बचपन में होता नहीं कि बच्चा बाहर ना घूमे, गंदी आदतों में ना पड़े, तो इस चक्कर में फिर डैड ने मुझे साइड गेम की तरह सिखाया, तो मैंने खेलना चालू किया। फिर दीदी को भी थोड़ा सिखाया ताकि हम आपस में खेलते रहे, तो वहां से कंटिन्यू होता होगा। क्योंकि फिर दिन में मेरा ऐसा होता था कि मुझे दिन में 14-14, 15-15 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न ऐसा था कि मैं सुबह 5 बजे सोता था, 10 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर वापस 2 बजे तक खेलना, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर रात को 7 बजे तक खेलना, और फिर 11 बजे से फिर सुबह 5 बजे तक खेलना। तो ये सब चीज मेरा वो पैटर्न था। तो वहां से फिर हुआ कि जब नेशनल चैंपियन बना, तो डैड का एक वो था कि यार एक बार तू खेल जाए, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था चेस में, पर डैड का था कि एक बार नेशनल चैंपियन बन जा तो फिर उसका छोड़ दियो। जैसे ही मैं वर्ल्ड कप खेल के आया 2003 में, मैं अहमदाबाद में एक टूर्नामेंट खेला, मैं डैड का तो बोला, डैड अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मुझे क्रिकेट खेलना है। तो वहां से फिर मैंने पूरा फिर फोकस क्रिकेट पे कर दिया आफ्टर 2003। हमेशा पूछना रहता है लेग स्पिनर्स को कि जब भी मैं लेग स्पिन, मतलब कभी भी अगर गलती से भी आइडिया आ गई चलो लेग स्पिन डालते हैं, जब भी अपन लेग स्पिन डालने की कोशिश करते हैं, पहला बॉल होता है हेलमेट पे, दूसरा बॉल होता है खुद के पाव पे। Actually, yours reaches there, mine reaches the next pitch. Yeah, true. So इतने सारे लाइक ऑफ स्पिन है, पेस है, इतने सारे बैटिंग है, इतने सारे इजी चीजें है, आपने लेग स्पिन सबसे हार्डेस्ट चीज क्यों चूज किया? क्या मतलब क्या आइडिया था उसके बिहाइंड? पागल, इजी चीजें हर कोई कर रहा है यार। वाह, क्या जवाब है यार। This is woman of the match यार। स्मृति, done. I'm leaving the show. बस अभी क्या Next host भी है। बस नेक्स्ट बंद। यूजी भाई आपको कुछ बोलना है उसके ऊपर? कह रहे हैं सीढ़ियां तो हर कोई चढ़ता है, पर हम तो माउंट एवरेस्ट वाले हैं। वाह, सही बात है। तालिया। One more question I really had. Since both of you all, compared to everyone else in the Indian team, are not like as tall, so has being, not that tall been an advantage or a disadvantage being a leg spinner? I think advantage ज्यादा ही है, क्योंकि आप फ्लाइट कर सकते हैं बॉल को। कोई अगर 6 फीट का है तो वो इतना फ्लाइट नहीं कर सकता। तो छोटी हाइट हो, मतलब mine is 5'7", 5 feet, तो उसमें क्या है कि आप बॉल को ज्यादा रिप्स दे सकते हैं, ज्यादा फ्लाइट कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है क्रीज यूज करने का। जो टॉलर होता है तो आई थिंक आपको ट्रेजेक्टरी क्या है कि अगर हाथ 10 फीट से आ रहा है तो हाथ हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो आई थिंक ये प्लस पॉइंट हमेशा रहता ही है। और चाहे वो T20 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आर्ट आप में है, जो लेग स्पिनर आउट करता है, उसकी ज्यादा विकेटें हमेशा देखना लेग स्पिन पे ही होती है। और जो गुगली वगैरह, स्लाइडर वगैरह ही होते हैं, ये एक स्ट्रोक बॉल होता है। तो मेरा वही है कि जो आई थिंक मुझे तो काफी हेल्प हुआ है मेरी हाइट से, कि मैं अगर हाइट लंबी होते तो मैं पता नहीं क्या मीडियम पेसर बनने की सोच चुका होता मैं। एग्री उनकी बात से, क्योंकि मेरा दिखाते भी है वो लोग हमेशा बॉलिंग का, कि जो मेरी ट्रेजेक्टरी है वो और बॉलर्स के अकॉर्डिंग मेरी अलग है। और लाइक जो चीजें हैं हमारे पास, उस चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। यार हाइट नहीं है तो यार ये ज्यादा लोग कर लेते हैं, ये लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस जो हमें है वो और लोगों को भी नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं यार हमारे पास नहीं कर सकते, जो चीज है वो चीज में इम्प्रूव। फील्डिंग में भी अच्छा है ना, जल्दी से इजीली झुक सकते हैं, हमको इधर से इधर आना पड़ता है, झूलन दिखो तो और भी ऊपर से आना पड़ता है नीचे।
समृद्धि बहन आपकी हाइट तो 6 फुट है ना, आपको तो लिफ्ट लेनी वो पड़ती है मैं नीचे आने झूलन के सीख के लिए। ना मैं आ ही रही थी, झूलन सीख के आ ही रही थी मुझे पता था ये आने वाला है, इसलिए मैं झूलन की को बोला। यार 15 दिन या 20 डेज हमने रियाब किया यार साथ में, आई नो क्या है राइट चिंटू भैया। चिंटू भैया ये नाम भी पता है कहाँ से आया है, आपको याद है? आई थिंक आई कॉल्ड यू चिंटू, चिंटू Yeah. सिस्टर। हाँ, तो मतलब कॉपी कैट, मतलब खुद का तो आना नहीं है कुछ, हमको नहीं कॉपी नहीं करो। ऐसे नहीं हुआ। एक बार की चिंटू से ये बुला रहे थे, 2 दिन बुलाए, तो मैंने बोला यार आपकी बॉडी के हिसाब से तो मुझे आपको चिंटू भैया बुलाना चाहिए ना, तो वो जो बोले कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को चिंटू भैया और चिंटू से बुलाना चालू किया। And by the way, we have another superstar here also who has a name, right, Swati? We have Yes, yes, Shahrukh big, Yadav with us. बड़े बड़े सुपरस्टार। Chintu bhai, we kept her name Shahrukh Yadav. Have you seen Zero? Yeah, In that, Shahrukh Khan didn't act. PY had acted. no comments, no comments. I hate. But we love you, yeah, PY. We love you, Shahrukh bhai. अपना बोल देने का है ना। That's a strategy. See, you know me well. Okay, anyway, Chintu bhai, we've seen a lot of pictures and videos of you with your dogs. Yeah. Matlab, can you tell, like, how is, having a dog, how has it changed, means you as a person or your life, and how important it is to have animals? आई थिंक जो सबसे पहले था, जो मेरा फर्स्ट डॉग था, जब मैं हरियाणा में जींद में रहता था, तो उसका नेम प्लूटो था। तो वो 19 ईयर्स हमारे साथ रहा था। तो उसका उसके बाद डेथ हुआ, तो क्योंकि इतने अटैच हो गए थे कि अगर रक्षाबंधन होता तो दीदी पहले उसे राखी बांधते थे, तो पूरा फैमिली से इतना अटैच हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं बाहर दिल्ली अकेला रहता था, मॉम डैड उधर हरियाणा जींद में रहते थे, तो एक मुश्किल हो जाता था कि कोई है नहीं तो संभालने वाला। तो जब फिर मैंने इधर गुड़गांव में घर बनाया लिया, तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट अब मैं भी यहाँ पे हूँ तो एक इजी भी रहेगा संभालने के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले ग्रूट, जो सबसे बड़ा डॉग है मेरा, उसको बेंगलोर शेल्टर से मैंने अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद जो छोटू वाला आया, तो उसको हरियाणा से अडॉप्ट किया। तो उसके चक्कर में, क्योंकि मेरा एनिमल्स के साथ इतना काफी है, स्पेशली डॉग्स के साथ, तो उसके चक्कर जब से मैंने उन्हें अडॉप्ट किया, तो वहां से फिर मैंने सोचा कि नाउ आई एम वेजिटेरियन। मैं मतलब क्योंकि मेरे को पता है कि मैं हेल्प वगैरह करता हूँ, तो मेरे को 6.5 महीने हो गए नॉनवेज छोड़े हुए। और आई थिंक ये चीज एक अच्छी है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप एडॉप्शन में जा सकते हो, क्योंकि वो लोग एक ऐसे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको प्यार भी सबसे ज्यादा करेंगे और समझते भी है। क्योंकि मैं वो, अब जब मेरा रूम, उन्हें पता ही मेरा रूम ऊपर है, तो वो सुबह हो शाम हो कब वो आते हैं रूम के बाहर, चिल्ला के भोग के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा रूम बंद है। तो इतना वो है कि, और आई थिंक मेरे लिए इतने क्लोज हो गए हैं हम सब की, मतलब अगर वो नहीं होते ना, तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरा लॉकडाउन ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो आई थिंक मेरे को ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, या आप नहीं, आपको पता है कि चीजें, तो एटलीस्ट ये चीज करना चाहिए। इनके डॉग्स की वीडियो देख के जैसे लगता है डॉग होना चाहिए, और यहाँ पीवाई की वीडियो देख के जैसे लगता है कि यार अपन क्या सो रहे, उठो, दो ईट लो, उसको डंबल बनाओ और उससे प्रैक्टिस करो। यार पीवाई, व्हाट इज द सीक्रेट? वेरी इंस्पायरिंग, वेरी क्रिएटिव। भाई आपने उनका वीडियो देखा? नहीं। ओके, उन्होंने 2 ईट को अपना डंबल बनाया और उससे उनका वर्कआउट करे थे। सॉरी मुझे टू यस, वही तो यार, दो वही बोली यार। एक अच्छी चीज होना चाहिए, क्योंकि पहले कौन सा देखा जाए तो पहले कौन सा जिम वगैरह ये होता था, तो लोग जो अगर करते थे, तो मैं इन्हें एक चीज बताऊं, जैसे घर पे है इनको एक बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि टॉवल गीला करके उसको जितना आप ऐसे निचोड़ते रहोगे, फिंगर्स और वो बेस्ट होगा। क्योंकि मुझे 4 फ्रैक्चर है, ये मुझे बाद में पता लगा। आई हैव 4 फ्रैक्चर। आईपीएल में फ्रैक्चर में भी खेला हूँ, तो मैच के, तो मुझे फिर पता लगा कि नहीं यार, फिंगर्स जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फिंगर्स है, क्योंकि अगर वो घूमना बंद हो गई तो फिर हमें ग्राउंड के बाहर घूमना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं भी आज से ये करूँ तो लेग स्पिन डालना शुरू कर सकती हूँ? नहीं, आपके लिए ग्रिप के लिए अच्छा होगा, आपकी बैटिंग ग्रिप के लिए अच्छा होगा। ये बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल देसी नुस्खे हैं जो मतलब लोग मतलब अभी कर सकते हैं, जो अगर जिम में नहीं कर सकते लोग। फ्रैक्चर से याद आया, पीवाई को वर्ल्ड कप से पहले स्टिचेस थे। इस वर्ल्ड कप से पहले? यस, इस वर्ल्ड कप से पहले। तो वो फुल ट्राई सीरीज उन्होंने मिस की, जो हमने वर्ल्ड कप से पहले खेली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ।
एंड पीवाई उस टाइम बहुत मेहनत करी थी, फिटनेस एंड ऑल वो सब हमने देखा था जमी, राइट जमी? Yeah, I think she was in a तो peak at that time. कितने स्टिचेस थे यार पीवाई? मेरी सर्जरी हुई थी तो उसके लिए उन्होंने कट करके 10 स्टिचेस लगाए थे और 2 आगे वायर लगाए थे। कार्पल टूटा हुआ था मेरा और उसमें क्रैक्स भी थे, तो इसीलिए पूरा सर्जरी करनी पड़ी अंदर। एंड उसके बाद वो फर्स्ट वार्म अप मैच जो खेले चिंटू भैया, जो लाइव आई नहीं थी वेस्ट इंडीज के साथ, उन्होंने 20th ओवर हमारे लिए डाला एंड आई थिंक लाइक 8 या 9 रन डिफेंड किए। उसके बाद सुपर ओवर हुआ, जो ट्रायल सुपर ओवर हुआ, उसमें भी जो पीवाई ने बॉलिंग का डाल के हमको जिताया, उनकी जो कमबैक मैच थी। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया मैच तो सबको पता है आई थिंक क्या कमाल उन्होंने किया था। तो पीवाई हाउ वाज इट? क्योंकि सबको पता है आई थिंक इंजरीज के बाद वापस कमबैक करना इज दी टफेस्ट। तो आपको खुजली हो रही थी ट्राई सीरीज के टाइम? बहुत खुजली हो रही थी, लाइक कि नहीं यार कब मौका मिलेगा, कब मैं खेलूंगी। लेकिन तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि यार मैं कब टीम के साथ आऊंगी। और तुम लोग बैकअप भी कर रहे थे, लाइक ट्रेसी दी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जॉय सर बहुत सपोर्ट कर रहे थे, रमन सर और हमारे सर लाइक सर पिरवानी सर, तो लाइक सब लोग मेरे को बैकअप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब आपको सपोर्ट मिलता है, लाइक जब मैं कैचेस कर रही थी कॉस्को बॉल से, तो फर्स्ट टाइम मैंने कैच किया तो मेरे को रोना आ गया था उस टाइम पे। उस टाइम पे फर्स्ट डे हम लोगों ने फील्डिंग किया था। मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा है कैचेस। सर ने बोला पूनम बस 5 कैचेस पकड़ो, लेकिन अगले दिन 10 पकड़ी। मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा। ट्रेसी दी आए भाग के, नहीं 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 भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ आपको वर्ल्ड कप देखो, आप देख के खड़े हो। मैं गई, मेरे आंखों में मैंने वो पहना हुआ था ग्लासेस, नहीं तो इतना रोना आ रहा था ना। मैंने कहा अच्छा वो ग्लासेस पहने, नहीं तो ट्रेसी दी ने रुला ही देना था वहां। फिर बस उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी मैं कि मेरे को वार्म अप मैच खेलना है सबसे पहला, कि मैं उसमें परफॉर्म करूं। उसके बाद ही मैं वर्ल्ड कप में खेलने लायक हो सकती हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई अच्छा नहीं करा है, तो जाहिर सी बात है मैं भी ऐसे सोचूंगी कि नहीं यार मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं डिजर्व नहीं करती आगे के मैचेस। तो एक प्रेशर भी था कि नहीं यार आफ्टर इंजरी मेरे को कमबैक कैसे करना है। तो सब लोगों का वीडियोस देखना, सारी टीमों के, और रात रात भर वीडियोस देखना कि नहीं मेरे बॉलिंग में क्या कमी है। और नेट्स में सर मेरे को एक ही पेयर में बॉलिंग देते थे। मैं सर के पास जाती थी, सर आपने एक ही, हाँ एक ही दिया, नहीं नहीं एक ही। मैंने कहा नहीं सर एक पेयर नहीं चलेगा सर, मेरे को सर कम से कम 2 या 3। एज अ लाइफ में मैंने हमेशा 3 या 4 पेयर बॉलिंग करी है हमेशा। तो सर ने बोला मैं क्या होऊंगा। मैंने कहा सर प्लीज मेरे को बॉलिंग तो करवाओ आप, क्योंकि मैचेस में वैसे भी नहीं कर रही थी। लेकिन फिटनेस में नरेश सर ने मेरी वाट लगा रखी थी। उन्होंने आते बोला था आप लोअर बॉडी आपका थोड़ा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरे को 2 हफ्ते दो, मैं देती हूँ आपको। 2 हफ्ते बाद बोलते हैं पूनम आपका ठीक हो गया अभी? मैंने कहा सर अभी हो गया ना, आपने भगाया ना मुझे। कहते हाँ तुम लोग का सपोर्ट था कि तुम लोगों ने मुझे बहुत बैकअप करा, तो उसका रिजल्ट है। मेरी मम्मा के सारे प्रेयर्स है, मेरे फ्रेंड्स ने मतलब बहुत प्रेयर की मेरे लिए, कि मैंने बहुत टाइम बाद मैंने कम बैक करा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की प्रेयर और मेरी मेहनत सब मिलके मैंने रिजल्ट उस चीज का रिजल्ट मिला। I mean, that's very inspiring, Smriti. Imagine, like, for us youngsters, the kind of standard, like PY set, means you saying one thing is different, but you're actually doing something. As you always keep telling me, actions speak louder than words. I mean, this is a perfect example. And, PY, I just hope that you continue inspiring means the younger generation and so many other people, like, to have that dedication and that amount of, commitment towards the game. And hats off, yeah, PY. थैंक्स जिमी, रुलाएगी अभी। तो वनडे एंड T20 में हम लोगों को थोड़ी बैटिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। मोर देन बैटिंग स्टाइल आई थिंक माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि अभी मे बी 6 ओवर्स है, उसमें ही अपने को बैटिंग करनी है ना जमी, लाइक तो वैसे बॉलर्स को माइंडसेट चेंज करना पड़ता है या कुछ बॉलिंग में चेंज करना पड़ता है, और फ्लाइट वेरिएशन या वेरिएशन दैट व्हाट इट इज लाइक कि क्या चेंज करना पड़ता है दोनों फॉर्मेट में? बॉलिंग आई थिंक सेम रहता है, पर आपको जो चेंज करना होता है वो आपका माइंड होता है। ODI में you have 10 overs and T20 you have only 4 overs. ODI में एक स्पेल के बाद you have another spell जो आपको कमबैक करवा सकता है, पर T20 में वो नहीं होता। तो T20 में you have just only 24 balls. तो 24 balls में आपको ये रहता है कि मेरा जो हमेशा रहता है, मेरा स्पेशली रहता है कि गेम का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे विकेट के लिए जाना चाहिए या रन रोक लेके जाना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इट्स नॉट ए इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम। तो आप बात करते हो अपने सीनियर से कि हाँ मुझे कैप्टन से कि आज इस टाइम मैं विकेट के लिए जाऊं या मुझे रन रोकते हैं।
तो आई थिंक वो चीज ज्यादा मेन होती है। T20 में ये होता है कि जितना आप बचने के लिए जाते हो आप उतना ही मार खाओगे, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो। क्योंकि कई बार होता है यार, पहली बॉल पे जब छक्का लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि यार अब पहली बॉल पे छक्का लग गया, अगली 5 बॉल ना मैं ऐसे डालता हूँ कि मैं एक दूं। वो चीज में क्या होता है कि उसमें एक बाउंड्री जब ओवर आती है ना, तो अल्टीमेटली ओवर आपको 14 या 15 रन का हो जाता है। तो उसमें या तो आपको अगर 3 ओवर में या 35-30 रन भी अगर पड़े हैं तो आपके पास लास्ट ओवर है, उस लास्ट ओवर में आप कई बार 3 या 4 विकेट लगे, अगर 3-4 रन देगा 2 विकेट ले लेते हो तो अल्टीमेटली आपका 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट हो जाता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, जैसे मेरे 2 ओवर में 28 रन लग गए, लेकिन जब मेरा स्पेल खत्म हुआ तो मेरे 4 ओवर 34 रन 35 रन 2 विकेट हैं। तो आपको वो कमबैक कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको जो मेन चीज होती है वो बैट्समैन रीड करना आना चाहिए कि हाँ ये इसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसका ये वीक पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ बॉल डालूंगा तो मैं वहां पे ही बॉल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कवर ऑफ स्टंप के बाहर डालते हो तो या तो कवर के ऊपर या रिवर्स का होता है, रिवर्स अगर कोई मारता है तो उसके आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है इट्स अ गुड शॉट। लेकिन मेरा मुझसे ये है कि हाँ अगर मैं छक्का खाऊंगा तो मैं कवर के ऊपर से खाऊंगा। तो जब आप वो चीजें सोचते हैं तो उतना ज्यादा दिमाग फर्क नहीं पड़ता कि आप T20 खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं। तो टेस्ट मैच में खेला नहीं हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास जो भी खेला हूँ उसमें आपका ये होता है कि फील्डर ऊपर होते हैं, तो उसमें आपको ना बैट्समैन को आउट करना पड़ता है टेस्ट मैच पे। ODI और उसमें कई बैट्समैन को पता है कि चांस लेगा तो आपके पास भी वो खुद ही आ जाएगा, लेकिन टेस्ट मैच में आपको वो चीज आउट करना पड़ता है, तो आपकी स्किल ज्यादा यूज होती है और आपकी पेशेंस ज्यादा यूज होती है उसमें। जो सही चीज है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ बॉलर अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मेरे को इस ओवर में 20 रन आया है, तो नेक्स्ट ओवर में एक मेंटलिटी ये रहती है कि नहीं यार कम बैक करना है। लेकिन मेन थिंग ये है कि हम लोग को एक लाइन पे बॉलिंग करना आना चाहिए, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडेज हो, चाहे वो T20 हो। तो लाइक अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं एक लाइन पे बॉलिंग करने की कोशिश करती हूँ। अगर ऑफ स्टंप से बाहर डालना है तो वो वहां के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, अगर स्टंप्स में डालना है तो उसके लिए प्रिपरेशन, और पैर पे खिलाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन। मैं उस चीज के लिए प्रिपरेशन भी करती हूँ कि बैट्समैन कौन सा बैट्समैन कहाँ स्ट्रांग है। जैसे हमारी जेमी बहुत स्ट्रांग है कवर्स पे खेलने के लिए, और स्वीप भी बहुत अच्छा मारती है। तो ज्यादातर जेमी को अगर स्टंप में डालेंगे तो ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट है। तो जैसे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर है तो उनका भी अच्छा है कि उनका भी समझ में आता है हमें। तो लाइक मैं सबके वीडियोस देखती हूँ कि कौन कहाँ पे स्ट्रांग है, तो उसको उसके जोन में ना खिला के जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है वहां बॉलिंग करूं, और बैट्समैन को इरिटेट करना है कि नहीं यार आप लोग को ये शॉट अच्छे आते हैं, हम लोग आपको यहाँ पे बॉलिंग ही नहीं करेंगे। तो लाइक पैटर्न सब में एक ही है बॉलिंग का, लेकिन माइंडसेट टेस्ट मैच के लिए अलग रहता है, वनडेज के लिए माइंडसेट अलग रहता है, T20 के लिए अलग रहता है। So basically nothing changes, but it's just to have the right mindset, right? Yeah. So today we have Chahal TV and Jimmy's Bouncer, दोनों के दोनों PY आज ये शो पे है, जो कि आई थिंक दोनों बहुत बड़े लोग हैं। तो आज दोनों को एक छोटा सा टास्क है कि यूजी भैया आपको सोचना है कि जेमी को वुमेन ऑफ द मैच मिला है, एंड आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है कि आपको उसको वेलकम करना है। एंड सेम जेमी, यू हैव टू थिंक कि यूजी भैया हैज गॉट मैन ऑफ द मैच, और यू हैव टू डू द इंट्रोडक्शन। जेमी's Bouncer and Chahal TV live together. I think this has never happened. PY, अभी बहुत ज्यादा जज, okay? मुझे मिला है, मैंने 100 बनाया है। I mean, Okay. the most funny one will get the award. ठीक है डन। मुंबई की Okay. भेलपुरी। तो डिफिकल्ट है लॉकडाउन में, वो मिलेगा। आ जाएगा मुंबई की पानी पूरी पसंद है मुझे, भेलपुरी नहीं। वो भी आ जाएगी। चलो या तो चहल टीवी वापिस आ गया है लॉकडाउन के बाद, लेकिन अभी भी लॉकडाउन में है। इस छोटे से घर में छोटे छोटे कमरों में 4-4 हमने बना रखे हैं। तो आज हमारे साथ जो है जैमी, जिन्होंने सुना होगा, एक पुराने जैमी थे जो द बॉल थे, और एक सेम हमारी ये जैमी है, छोटी सी बॉल। तो ये आई यू स्कोर्ड 100 जैमी। मतलब पहले थोड़ा क्रिकेट की बातें करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा कि मतलब 100 रन का मैच काफी फंसा हुआ था, फिर थोड़ा स्मृति के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई। पूनम ने थोड़ा सा कंट्रोल किया था बॉलिंग में, रन कम थे, लेकिन आपने 180 रन का टारगेट था, लेकिन उसमें आपने 100 बनाया। तो एक कैसी पार्टनरशिप रही आपकी समृति के साथ, प्लीज आप वो बताइए। आई थिंक समृति से बढ़कर पार्टनरशिप जो कल रात को आपने जो मुझे टिप्स दी, जो सेम टिप्स आपने विराट भैया को दी जो मुझे दी, आई थिंक वो काम आया आज। तो क्रेडिट गोज टू यू भैया, नॉट टू मी। लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग, आई जस्ट लिसन्ड टू व्हाट यू सेड एंड जस्ट फॉलोड इट टू द टी। तो थैंक यू भैया। मैं वही सोच रहा था, कल मैं
कल वही सोचा था कि यार मेरा एक बैट गायब है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब सेम कंपनी मैंने अपने बोला, फिर मतलब क्या आप वही बैट पे इसने आपने 100 बनाया? I ट्राई किया सीक्रेट रखने को, पर अभी इट्स आउट। या द सेम बैट यू गेव मी, एक्चुअली गेव मी नो, मैंने चुराया था। करेक्ट। वैसे एक चीज अच्छी है, अगर आप टीममेट के साथ बाहर जाए तो उनका खर्चा बच जाता है, क्योंकि आई थिंक आप और मैं थोड़ा कम ही खाते हैं आजकल। मेंटेन किया हुआ है हमने अपने आप को। नहीं, अगेन यार, जैसे बोला था कि आई एम फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एंड आई थिंक वो डाइट में ज्यादा खाना नहीं है, तो दैट्स इट। तो बस अभी इतने थोड़ा जल्दी से रैप अप करेंगे, चैल टीवी वापस आएगा, लॉकडाउन के बाद पता नहीं कौन सा रूम होगा, कैसी जगह पे कैसा बैकग्राउंड होगा, पर हम जल्दी मिलेंगे। एनी 2 लाइन फॉर चैल टीवी, जेमी? एनी 2 लाइन्स? नो। ये कट कर देना, कट कर देने वाला पार्ट कट कर देना। नहीं, ये पार्ट आना चाहिए, ओके? See, चैल टीवी is direct competition to Jemmy's Bouncers, so no comments. No So comments. I think abhi the standard is quite high, Jemmy. Come on, Jemmy, you have to make us proud. Okay, so I'm going to do Go. it a bit in my style, okay? Yeah, Like yeah. post-match presentation and all. Ladies and gentlemen, this is Jemmy Shastri and welcome to the post-match presentation. What a game it has been between the Chahal Chandus and Jemmy's Giants. And yes, the Chandus showed the Giants their place. All because of one man who stood out off the ground. Yes, you're right. He is the 12th man, also the world heavyweight champion, and also the player of the match, my boy, Uzi! Uzi, my question is this. I mean, the match is going on, high intensity match, but after the drinks break, the moment you give water on the field, कुछ जादू हुआ था, मतलब पानी में क्या मिलाया था आपने? क्योंकि वो कुछ होता है ना कि चीज को पकाना पड़ता है, मतलब ऐसे ही मैंने ना 1 हफ्ते से पानी पका रहा था मैं उस पानी को। मैंने वो जाते ही मैंने सीधा विराट भैया को दिया, तो वो पानी रखा हुआ था सेफ, तो उसमें जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, तो उनसे वो हुआ। उसके बाद वो अभी भी अपना रूम में, ड्रेसिंग रूम में बुमराह से बॉल करा के अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी कंट्रोल हो रहा है उनसे। आपने कैसे पकाया? आपकी बातों से? सॉरी, वेरी बैड वन। No, I liked it, actually, true. So that's it today from Jemmy's Bouncers. That's it, man. I just had one question to ask. जल्दी खत्म हो गया ये तो। Okay, PY, I think बहुत tough है ये. So I think अपन इस कंट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं है, अपन फैंस के ऊपर रख देते। ये I think जब भी एपिसोड बाहर आएगा, आपके कमेंट्स में आप फैंस बता दीजिए कि आपको कौन पसंद आया, जेमी बाउंसर या चाहल टीवी। जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उनको मिलेगा मेरा एक फोन कॉल। Shit, now I have to win this match. मैं फिर रहने दो। Vote for Jamie, please. Okay, that was brilliant. Thank you guys, thank you चिंटू भैया, thank you PY, आप शो के पे आए। आपने बुलाया, बहुत वो है कि मतलब कुंभकर्ण को नींद से उठा दिया। प्लीज आप लोग सेफ रहिए, स्टे सेफ, एंड अगर छोटा मोटा आप मदद कर सकते हैं, अगर आसपास जो भी है, तो प्लीज वो करिए, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इजी रहता है। स्पेशली जब मुंबई में वो चीजें अभी बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आप वो देखोगे तो आस पड़ोस जो भी है, स्पेशली जो आपकी सोसाइटी में काम करते हैं, तो आई थिंक वो उनके लिए थोड़ा अगर हम करें, जैसे हम मेरे पड़ोस में कोई है या उनके लिए, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम करेंगे तो कंट्रीब्यूट होगी, क्योंकि एक यही टाइम है जो हमें साथ में रहना है। बस बहुत सीरियसनेस होगी, मैं हूं नहीं ऐसा। चलो। No, definitely I think we will look forward, जेमी। सब लोग अपन जो भी कर सकेंगे कोरोना वायरस जल्दी से डिफीट करने के लिए, आई थिंक एवरीवन शुड हेल्प। सब अपने अपनी जगह पे करेंगे तो सब लोग, आई थिंक पूरी इंडिया जल्दी से रिकवर हो जाएगी कोरोना वायरस से। So yeah, thank you guys. Thank you guys, thank you for coming on the show. So now is the most fun and interesting part, which both I believe Smriti and I both are excited. It's the Q&As. So Smriti, we start with you. Since I'm a very humble person, you go first. Yeah, really happy the amount of questions we've got. So I think the first question which I've got is Sakshi Chaudhary say, if had an option, what would you give up, Bhel or Jemmy? very easy. That's Jemmy any day, any minute.
Thank you so much, Sakshi, for putting me under this. I mean, I cannot quit the show also because I have to do it. So I'll just keep my emotions aside. My first question by Sanjeev. So Sanjeev's asking me, referring to the dance video that went viral during the World Cup with the security guard, how could you convince her? It was easy. I didn't have to convince her. So I was actually, the story is, I was playing music and she was supposed to take us to the dining area, and I was just just dancing like that with the music, and she also started dancing. So both of us, we had a mutual understanding. Okay, let's go for it and let's dance. So that's how both of us started dancing. And my friend was behind me. She's like, okay, let's make this a video. This is very cool. So that is the whole story behind. So basically बस यही है कि ये ऐसे होता है कि जब दो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं तो वैसे होता है. Moving on. Nice one. I have got a question from Tanya Das. In this video, we saw you are opposite from each other. So any commonality? अच्छा, so she's referring to the teaser of the Double Trouble. बहुत मुश्किल है commonality because I'm a smart I think we person. have now. No. We both are good looking, man. No comment. Okay, Thanks, Jamie. I think you already insulted me in the first question. Thanks. Yeah, I think but on a serious note, commonality would be कि दोनों को batting करना बहुत पसंद है. I think we can go and straight away bat for 8 hours बिना रुके. We both love hoodies. We are big hoodie fans. Yes, so I think we both are wearing also hoodies. Also, we both are good looking. Okay, coming back to the second question. My question is from Kavya. Would you rather be an unknown superhero or a famous villain? What makes you think that I am not that superhero? Your face. Okay, next question. Next question. Moving forward, I think I have got a question from Arfat. Who's your favorite Hollywood actor or actress? Well, I don't watch a lot of English movies, not many. I am a big Marvel fan. So I love Tony Stark. So that's Robert Downey Jr. And मुझे Captain America भी बहुत पसंद है. So that's like Chris Evans. So I think those two are my favorite characters. And again, taking Marvel into consideration, I like Scarlett Johansson because she plays Black Widow. Smriti, एक पूछा था. 10 नहीं. Thanks. अरे जितना ज़्यादा अपन नहीं. Nobody is interested. Just kidding, man. Okay, so the third and final question I am going to answer is the question of Sham. You or Yuzi, who's the better entertainer off the field? I think you should watch today's video and then you can decide who's the better entertainer. So ladies and gentlemen, that's it for today. Hope you guys enjoyed it as much as Smriti and I enjoyed it, and also our guests. Please do like, subscribe, comment, and just tell us how do you feel about the show. So until then, this is Little J signing off.